السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ صفا بیت المال کی جانب سے 100 آکسیجن کنسنٹریٹرز اور 50 آکسیجن سلنڈرز عوام کے لیے دستیاب۔ ملاردیو پلی پولیس اسٹیشن حدود میں فرضی سینیٹائزرز بنانے والوں پر چھاپہ مارتے ہوئے انہیں کیا گرفتار۔ لاک ڈاؤن کے دوران کشن باغ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن حدود محمود نگر میں کچھ افراد جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔ کورونا مریضوں کی مدد کے لیے ضلع کلکٹرز اور وزراء کو KTR کی ہدایت۔ زائد فیس وصول کرنے والے ہاسپٹلز کی شکایت۔ آکسیجن کے لیے آندھرا پردیش کے ایک مریض کا رابطہ۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ تعلیمی سال کے آغاز پر خدشات۔ تیسری لہر اور بچوں کے متاثر ہونے کے انتباہ پر محکمہ تعلیمات فکر مند۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کی آمدنی ہو رہی متاثر۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 4106 افراد ہوئے فوت۔ 2,81,000 سے زائد نئے معاملے آئے سامنے۔ اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری۔ غرب اردن میں 21 اور غزہ میں 33 فلسطینی شہید۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ پیر سے جاری فضائی حملوں میں اب تک صرف غزہ میں 181 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمن 10 ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس۔ خبروں کی تفصیل۔ صفا بیت المال جو ہمیشہ عوام کی خدمت میں حاضر رہتی ہے، چاہے کورونا وبا کا دور ہو یا سیلاب سے متاثر افراد کی خدمت کے لیے یا پھر کوئی اور مشکلات یا پھر لاک ڈاؤن، ہمیشہ صفا بیت المال کی جانب سے عوام کی خدمت کو جاری رکھا گیا ہے۔ اسی طرح کورونا وبا کے دور میں بھی صفا بیت المال ملک پیٹ حیدرآباد کی جانب سے زبردست کام انجام دیا جا رہا اور اس دوران 100 آکسیجن کنسنٹریٹرز اور 50 آکسیجن سلنڈرز عوام کے لیے دستیاب ہے۔ اس ضمن میں صفا بیت المال کے ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سہولیات عوام کے لیے جاری کی جا رہی ہیں تاکہ عوام اس کورونا وبا کے دور میں ہماری خدمت سے استفادہ کر سکیں اور مشکلات سے جوجھنے سے بچیں۔ بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، جو کہ 5 علماء کرام جو ٹرسٹیان ہیں، ان کی نگرانی میں گزشتہ 15 سال سے خدمت خلق میں مصروف ہے، جو بلا لحاظ مذہب و ملت ہے، انسانیت کی بنیاد پر جو خدمت کی جاتی ہے مختلف مراحل میں۔ الحمدللہ یہ ایک مثالی تنظیم ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے موقع پر صفا بیت المال نے مختلف قسم کی خدمات کی، میڈیکل ہیلپ لائن کا مسئلہ ہو، ایمبولینس کی سروس ہو، اور اسی طریقے سے جو ہاسپٹلس میں پیشنٹس کے لیے آکسیجن سلنڈرز کی فراہمی ہو۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانسنٹریٹرس ہیں اور آکسیجن سلنڈرس ہیں، 100 کانسنٹریٹرس ہیں اور 50 سلنڈرس جو لانچ کیے جا رہے ہیں آج۔ یہ اس ضرورت کی بنیاد پہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے پیشنٹس متاثر ہیں اور جن کو آکسیجن کی شدید ضرورت ہے، فری الحمدللہ یہ دیا جائے گا، جبکہ ڈاکٹر کی طرف سے رہنمائی ہو اور ان کے گھروں تک یہ پہنچایا جائے گا ان کا ID لے کر۔ اس میں کوئی امانت رکھنے کا وغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے پاس سے ہم دیتے رہیں گے، اس لیے کہ ضرورت میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی پوری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ادارہ اپنی وسعت کے بقدر کر رہا ہے اور الحمدللہ 72 لاکھ روپے مالیتی یہ کانسنٹریٹرز اور آکسیجن سلنڈر یہاں موجود ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم اہل خیر سے درخواست کرتے ہیں کہ مزید تعاون اس سلسلے میں کریں تاکہ ہم اور آگے بڑھ کر اہل خیر کے تعاون سے بیمار جو ہیں، غریب بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، ان کا تعاون کر سکیں۔ نہیں آپ مولانا
फर्जी सैनिटाइजर बनाने वाली गैंग को स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मैलारदीवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत फर्जी सैनिटाइजर बनाने वाले अफराद पर छापा मारा गया। करीब 10 लाख रुपए मालियत के फर्जी सैनिटाइजर जब्त कर लिए गए। साथ ही फर्जी सैनिटाइजर को बनाने वाले सामान जिसमें केमिकल्स थे उन्हें भी जब्त कर लिया गया और इस मौके पर शामिल मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। ఆయన 6 గంటలకు ఇక్కడికి వచ్చినాం సార్. ఒక బండి పక్కలు కూడా బండిలోనే ఉంటాయి. మీకు మనుషుల ప్రాణాలతో విలువ లేదా? ఇది శానిటైజర్ నకిలీదా ఒరిజినలా? మీకు ఏం ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి? నాకు చదువు రాదు సార్, నాకు చదువు రాదు. నాకు మామూలు తెలుగు 2-3 తరగతి చదువు. ఏమేమి వేసి తయారు చేస్తారు? నాకు తెలియదు సార్, నాకు ఇంగ్లీష్ అనేది నాకు గుర్తుగా. ఎవరు మీది? నాకు గద్వేల్ సార్. మరి ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినావు? మా అల్లుడు అదో బండి తీసుకురమ్మంటే వచ్చినాను. ఏం చేయడానికి వచ్చినావు? ఏం చేయడానికి? బండి తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టబండి పెట్టారు వచ్చాను సార్. బండి కూడా తెలియదు. అదో బండి అన్నారు. ఏం చేయడానికి వచ్చారు మీరు? ఎవరిది షాప్? శ్రీనివాసు సార్. ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు? కడపలో సార్, కరోనా వచ్చి హాస్పిటల్లో. మరి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? ఆమె సార్ 2 రోజుల నుంచి నేనంట నాకు తెలియదు. ఎవరు నేను చేస్తారు మెయింటైన్? కరోనా పరిణా ఏం పేరు? ఆమె పేరు పరిణా. నేను ఈ పొద్దు ఉదయం వచ్చాను, బట్టలు నా పెన్ను ఎక్కడ అమ్ముతారు మీరు? తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ అమ్ముతారు? నాకు తెలుసు. నేను ఈ పొద్దు ఉదయం వచ్చాను. అదే దేనికి వచ్చారు మీరు? బండి తీసుకున్నాను. ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు? లోడా అన్లోడా? నేను బండి ఖాళీ తీసుకున్నాను. लॉकडाउन के चलते किशनबाग बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद महमूद नगर के इलाके में कुछ अफराद जुआ खेलते हुए पकड़े गए, जबकि लोग कोरोना वायरस से परेशान अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और ये लोग बिना कोई खौफ के जुआ खेलते हुए पकड़े जा रहे। देखिए इस ज़िमन में पुलिस का क्या कहना है। को खेल रहा है पैसा वो टाइम पे पाने का मुश्किल हो गया। को खेल रहे हैं गेम? आज 8 बजे रीडिंग तो रिलायबल इंफॉर्मेशन है मूसी के रिवर के बाज तो पत्ता खेल रहे हैं बोल के इंफॉर्मेशन आए तो मैं एसआई एंड स्टाफ जाके रेड करे तो मैं 7 आदमी की कस्टडी ले ली है। उनके साथ तो 1700 रुपीज़ सीज करे तो पूरा ला के केस रजिस्टर करे, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रूल्स वायलेट करके वैसा करे तो उन्हें रेप केस रजिस्टर करके। कितने मेंबर्स है सब टोटल? 7 मेंबर्स है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने मुख्तलिफ अजला में कोरोना मुतासरा मरीजों की मदद के लिए जिले कलेक्टर व मुकामी अरकान असम्बली को हिदायत दी। उन्होंने खानगी दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी जो मरीजों से जायद रकूमात वसूल कर रहे। केटी रामाराव को ट्विटर पर मुख्तलिफ अजला व आंध्र प्रदेश के बाज मुकामात से कोरोना मरीजों की मदद के सिलसिले में अपील मौसूल हुई। फिल्म एक्टर निखिल सिद्धार्थ ने ट्वीट करके बताया कि अलंकार हॉस्पिटल वरंगल में मरीज से पहले दिन 1 लाख रुपए और बाकी दिनों में रोजाना 75,000 रुपए वसूल किए गए। फिल्म स्टार ने मरीज के तीमारदार से हासिल तफसीलात और उनका फोन नंबर केटीआर को रवाना किया। निखिल ने केटीआर से अपील की कि वो इस मामले में मदाखलत करें। केटी रामाराव ने जवाबी ट्वीट करके बताया कि वरंगल कलेक्टर को कार्रवाई की हिदायत दी जाएगी। इसी तरह की एक शिकायत महबूब नगर से रणवीता रेड्डी की। ट्विटर पर केटीआर को बताया गया कि पंचावती अस्पताल ने मरीज से भारी रकम वसूल की है। बिल की तस्वीर ट्विटर पर रवाना की गई। शिकायत में कहा गया कि हॉस्पिटल ने मरीज को सिर्फ ऑक्सीजन पर रखा, लेकिन मजीद 6 लाख रुपए अदा करने दबाव बनाया जा रहा। केटी रामाराव ने फौरी कार्रवाई करके वजीर सयाहत व मुकामी रुकन असम्बली वी श्रीनिवास गौड़ और जिले कलेक्टर को फौरी मदाखलत करके परेशान हाल मरीज और उनके अफराद खानदान की मदद करने की हिदायत दी।
कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की आमदनी मुतासर हुई। आरटीसी इदारा जो पहले ही खसारे का शिकार है, उसके मसाइल में मजीद इजाफा हुआ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इसकी आमदनी मुतासर हुई। लॉकडाउन के सबब बसें सिर्फ 4 घंटे ही चलाई जा रही, जिससे उसकी आमदनी ना के बराबर हो गई। लॉकडाउन के निफाज से पहले भी निशस्तों के लिहाज से आरटीसी को मुनासिब आमदनी नहीं हो पा रही थी। जारिया साल जनवरी फरवरी में 8,000 बसें चलाई गईं। आरटीसी को उन बसों से यौमिया 13 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। ताहम कोरोना की दूसरी लहर के सबब गुज़िश्ता महीने लगाए गए नाइट कर्फ्यू के दौरान उसकी आमदनी 4 करोड़ रुपए ही हो सकी। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के शदीद बहरान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,81,386 नए केसेस सामने आए, जबकि 3,78,741 अफराद इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। इस दौरान 6,91,211 अफराद को टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 18,29,26,460 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,78,741 मरीज बाजियाब हुए हैं, जिससे बहाली की शरह 84.25% हो गई। अब तक 2,11,74,076 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है। इस दौरान 2,81,386 नए मामलात सामने आने से मुताजरीन की तादाद 2,49,65,463 हो गई। फाल मामलात 1,01,461 से घटकर 35,16,997 हो गई। इस दौरान 4,106 मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिससे मरने वालों की तादाद 2,74,390 हो गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने एक हामिला खातून जो दर्द में तड़प रही थी, उसे उनके हामियों की मदद से नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उस हामिला खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद हामिला खातून के शौहर ने फोन के जरिए नामपली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज से बात की और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं क्या कहना है। जरूरत है मेरे को, वो आपकी जो आप फिरोज भाई आप भेजने से फिरोज भाई से जो सो काम हुआ अलहमदुलिल्लाह, आपकी वजह बहुत एहसान मन हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नहीं, कभी भी कुछ भी रहा ना, आप याद करो, बराबर करेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब नाफिद जी बिल्कुल बिल्कुल। खास हिदायत रहती के सेहत के मैदान के अंदर आप लोगों की खिदमत करना। बिल्कुल। जो फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब है ना, उन्होंने तो बहुत ज्यादा ये चीजों के अंदर दिलचस्पी रखते और जो भी हमसे खिदमत होती हम लोग बराबर करते। आप अपना ख्याल रखो जी। नहीं, आप तवज्जो दिए बल्कि हुआ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह कराया, नहीं अल्लाह कराया। मेरे आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदद से मेरा काम में तिरुपति जाने के लिए बहुत परेशान हुआ था सर, में पैसे नहीं थे मेरे को। नहीं, चलो ठीक है, बहरहाल हो गया ना। जी हो गया। जी अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी डॉक्टर हम बोल रहे हैं उस हिसाब से लाके बता लो। अगर कुछ भी तकलीफ आई तो फिर उसका नंबर रख लो, रख लेके बात करो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा नीलोफर ने हमारे आदमी रहते। जी अच्छी बात, जी अच्छी बात साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहर हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा बंडलागुड़ा एक्स रोड पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट डालते हुए व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया।
वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 10 दिनों का लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसके बाद इसमें तोसी करते हुए 29 मई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिसके बाद सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवाम को छूट दी गई ताकि वो अपनी जरूरी अशिया की चीजें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खरीद सके और 10 बजे के बाद लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा। इसी के तनाजुर में पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा और आवाम को बिलावजह घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया जा रहा। रियासत तेलंगाना की शहर हैदराबाद में वाक़े तारीखी चार मीनार इन दिनों रात के औकात में काफी सन्नाटा देखा जा रहा। वाज़ेह के तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा को कंट्रोल करने के ज़िम्मन में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद कई मुकामात पर रात के औकात में तारीकी देखी जा रही और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवाम को छूट दी जा रही ताकि आवाम जरूरी अशिया की खरीदारी कर सकें। इस दौरान चार मीनार का नाइट व्यू देखा गया, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ मिला। वाज़ेह है कि चार मीनार के अहाते में, जो कि ग्रेनाइट और चूने मार्टर से बना हुआ है, चार मीनार को 1591 में तामीर किया गया था। साबिक वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात जी कमलाकर को मशवरा दिया कि वो सियासी सरगर्मियों के बजाय करीमनगर में कोरोना मुतासरीन की मदद पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कोरोना की सूरत-ए-हाल जिले में संगीन है, बावजूद इसके रियासती वजीर करीमनगर बिलखुसूस हुजूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों, MPTC, ZPTC और दीगर मजालिस मुकामी के नुमाइंदों को धमका रहे हैं। ये नुमाइंदे दरअसल इटाला राजेंद्र के हामी हैं। इटाला राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया कि जी कमलाकर झूठे मुकदमात की धमकी देते हुए उनके हामी मुकामी नुमाइंदों को हिरासत कर रहे। उन्होंने कहा है कि वजीर की जानिब से हुजूराबाद के अवामी नुमाइंदों को मजबूर किया जा रहा कि वो राजेंद्र के खिलाफ बयानात जारी करें। अवामी नुमाइंदों को तरक्याती कामों के बिल्स जारी न करने की धमकी दी जा रही। वाज़ेह है कि जी कमलाकर ने हुजूराबाद और जमीकुंटा म्यूनिसिपालिटीज के सुदोनशीन और अरकान के साथ इजलास मुनक्किद किया था। इजलास में अवामी नुमाइंदों को इटाला राजेंद्र की तायद करने पर संगीन नताइज की धमकी दी गई। राजेंद्र ने कहा है कि रियासती वजीर को घटिया सियासत करने के बजाय कोरोना मरीजों की मदद करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा की वैक्सीन, जो कि कोवैक्सीन बताई गई है, उसकी किल्लत के सबब 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को दी जा रही सेकेंड डोज को मुलतवी कर दिया गया है। इस बात की इतला तेलंगाना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेस नोट के जरिए दी गई है। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन की अभी नई स्टॉक नहीं पहुंची है, जिसके सबब उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिसके सबब 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को कोरोना का टीका देने का अभी कोई ऐलान नहीं किया जा रहा और जब कोवैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी तो इतला दे दी जाएगी। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की 60,000 खुराकें हैदराबाद पहुंची। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने बताया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये खेप पहुंच चुकी है। 2 खुसूसी परवाजों के जरिए वैक्सीन की उन खुराकों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की आमद हुई। एयरपोर्ट से इस खेप को डॉक्टर रेड्डीज लैब के लिए रवाना किया गया। कहा गया है कि दूसरी परवाज के जरिए चीन से 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इस खेप की आमद के बाद डॉक्टर रेड्डीज
لیب نے بتایا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کھیپ حیدرآباد پہنچ چکی ہے. اس میں کورونا ٹیکہ اسپوتنک وی کی 60,000 خوراکیں آئی ہیں. یہ دوسری خوراک کے ٹیکے ہیں. کہا گیا ہے کہ اس کھیپ کے نمونوں کو سینٹرل ڈرگز لیبارٹری روانہ کیا جائے گا. ڈاکٹر ریڈیز لیب نے 14 مئی کو اسپوتنک وی ٹیکہ دینے کا آغاز کیا تھا, جس کی قیمت فی ٹیکہ 948 روپے مقرر کی گئی ہے. ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس, ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن. شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب, تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس, شیروانی, صدری, کرتا پیجامہ, پٹھانی سوٹس, ڈینم کرتا پیجامہ, عربک توپ, مینس اینڈ کڈس ویئر, ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ. ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں. ایڈریس ایڈمز کالونی, ٹولی چوکی. اور برانچ پوڈیم مال, ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ, حیدرآباد. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش. 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں. یہ پیشکش محدود ہے. جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مائناز پیشکش. فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے. جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل. الیکٹریسٹی, واٹر, بی ٹی روڈز, پارک, فٹ پاتھ, RTC بس, شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ, کلیئر ٹائٹل, اسپاٹ رجسٹریشن, گیٹڈ کمیونٹی, کتھور منڈل, شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر. بکنگ جاری ہے. جلد از جلد ربط پیدا کریں. ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز, میر عالم ٹینک, انصاری روڈ. آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر. حیدرآباد کے حیدرگڑا علاقے میں ایک مکان میں آگ لگ گئی. اس حادثے میں ایک شخص زندہ جل گیا جبکہ دیگر 4 افراد جھلس گئے. یہ حادثہ اونتی نگر علاقے میں پیش آیا. سمجھا جا رہا ہے کہ اے سی میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. جس وقت یہ حادثہ رونما ہوا اس وقت مکین محو خواب تھے. مرنے والا کی شناخت گوری ناتھ کی حیثیت سے کر لی گئی. فائر بریگیڈ کے عملے کو طلب کر کے آگ پر قابو پا لیا گیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس اس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی. شہر حیدرآباد کے علاقے راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود پلر نمبر 99 کے پاس اقدام قتل کا واقعہ پیش آیا. بتایا گیا ہے کہ عاشقی کے چکر میں لڑکی کے بھائیوں نے عاشق اور اس کے دوستوں پر حملہ کرتے ہوئے ان کی خوب پٹائی کی, جس کے بعد لڑکی کا عاشق کافی زخمی ہو گیا اور اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کا دوست بھی وہاں موجود تھا جس نے میڈیا کے سامنے ان مزید تفصیلات سے پولیس کو واقف کروایا. چلو جی چلو آپ نکلو بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید شعبے صاحب. کہاں کہہ رہے بولے؟ پٹا بلی گنڈال بابا شادر کا. یہاں پر کہیں کو آئے تھے ہم لوگ کو دیکھو بھائی اللہ بلائے جی. وہ بچہ شادی کرنے والا تھا, لو میرج کرتا تھا جی. تو وہ نمبر چلے گیا تو بچی ان سے بات کری تو اللہ بولے آ کے بات کر کے جو بھی کمپرومائز کرا دیتے. بچہ بولا میں شادی کرنے والا ہوں مجھے بولا. ہم لوگ کو بلا ایک جنے آئے جی. آئے تو وہاں پر گاڑی روکے, ہم لوگ پیٹرول ختم ہو گیا بھائی آگے ٹرول کرو ہم لوگ کرا کے. کتنے جنے تھے آپ؟ ہم لوگ 2 جنے سے تھے سر جی. ہم لوگ 15-20 جنے آگے مار کے. لوگوں میں کورونا کا خوف بڑھتا جا رہا. اس وبا سے متاثر نوجوان نے اپنے گھر والوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر کے قریب ایک درخت پر مچان بنا لیا اور وہیں رہ رہا. تفصیلات کے مطابق ضلع نلگنڈا کے اڈاوی دیوالا پلی منڈل کے کوتا نندی کونڈا دیہات میں کورونا کے معاملات میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا. راماوت شیوا نامی نوجوان عالمی وائرس سے متاثر ہو گیا اور جب اس نے معائنہ کروایا تو وہ مثبت پایا گیا. اس کا گھر چھوٹا ہے جہاں
जहां एक ही कमरे में उसके खानदान के 4 अफराद मुकीम हैं और अलग थलग रहने की कोई सहूलत नहीं। नौजवान ने घर वालों को इस वबा से महफूज रखने के लिए दरख्त पर मचान बना लिया और वहीं अलग थलग रहने का इंतजाम कर लिया। 9 दिन से उसके घर वाले रस्सी की मदद से उस पर दरख्त पर ही ग़िज़ा पहुंचा रहे। मुतासिर नौजवान ने मुतालबा किया है कि कोरोना मुतासरीन के लिए ग्राम पंचायत के दफ्तर में अलग थलग मरकज बनाया जाए। इसराइली फौज ने मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में जमीनी और फजाई हमलों में मजीद 54 मुसलमान फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फजाई हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद कुल 192 बताई जा रही और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गजा में सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइली फौज के ताज़ा तरीन हमलों में 16 खवातीन और 10 बच्चों समेत मजीद 54 अफराद हलाक हुए। नुमाइंदे ने बताया कि इसराइली फोर्सेस ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे के इलाके में भी अब जारहाना तशद्दुद आमेज कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और उनमें 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा पट्टी के शुमाली इलाके में गोलाबारी की है और मुहासरा ज़दा गजा शहर पर रात भर फजाई हमले जारी रखे हैं जिनके नतीजे में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। सफा बैतुल मॉल की जानिब से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स आवाम के लिए दस्तयाब। मइलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में फर्जी सैनिटाइजर्स बनाने वालों पर छापा मारते हुए उन्हें किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान किशनबाग बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद महमूद नगर में कुछ अफराद जुआ खेलते हुए पकड़े गए। कोरोना मरीजों की मदद के लिए जिले कलेक्टर्स और वुज़रा को केटीआर की हिदायत। जायद फीस वसूल करने वाले हॉस्पिटल्स की शिकायत। ऑक्सीजन के लिए आंध्र प्रदेश के एक मरीज का राब्ता। रियासत तेलंगाना में आइंदा तालीमी साल के आगाज पर खदशात। तीसरी लहर और बच्चों के मुतासर होने के इंतबाह पर महकमे तालीमात फिक्रमंद। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की आमदनी हो रही मुतासिर। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 4106 अफराद हुए फौत। 2,81,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। इसराइली फोर्सेस की जारियत जारी। गरब उर्दन में 21 और गजा में 33 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता पीर से जारी फजाई हमलों में अब तक सिर्फ गजा में 181 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।